welcome to a new vlog and I look like a chinky right now. That's because work has started again. सबसे पहली बात, अब मुझे लग रहा होता है कि मेरा हर vlog इस तरह से शुरू होता है. Oh my god, I love work. Finally work has started again. और उसी के एंड क्लिप्स में आता है काम बंद हो गया, बारिश हो रही है, कराची डूब गया. बट दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि आजकल चल रही है. व्हाट कैन आई इवन डू अबाउट इट. लेकिन एनीवे, आई लुक लाइक अ चिंकी बिकॉज 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी एंड देयर वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन एज वेल. उसकी वजह से फिर मेरे ये जो swollen eyes, चिलेजियन, स्ट्रेस, एक्नी, हेयर फॉल, ये सारी सिचुएशंस शुरू हो जाती हैं. सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन. लेकिन आज मैंने कहा कि यार आई नीड टू गो बैक टू माई थेरेपी, जो मेरी थेरेपी है, विच इज़ व्लॉगिंग. सो मैंने कहा आज मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी. बस रिगार्डलेस ऑफ हाउ द डे गोज आई एम व्लॉगिंग. बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं दिन में, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा होता टू बी एबल टू शूट इट. सो आज GBB में एक फुल डे है. And the good part is that even I have a few haircut appointments. बड़ी हो गई हूँ मैं, you know. So I have a few haircut appointments as well. कल भी मैंने एक haircut किया था. Let me just show it to you guys. Did you see how good those layers looked? That's like the signature Glossips haircut if I talk about it. बॉब से हटके बॉब इज द सिग्नेचर ग्लॉसिप्स हेयर कट एज वेल. लेकिन फिर भी अच्छा, हाँ. सो इट्स अ फुल डे. मैं उठ गई हूँ अभी. सो आई थॉट आई जस्ट हैव सम नाश्ता एट होम, नॉट आउट ऑफ अ डब्बा, लाइक रियल नाश्ता. सो उसके लिए उठी हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड आई एम गोइंग टू गो टू GBB. आज का सीन ये है कि दादी जान ने मेरे लिए हंटर बीफ निकाला हुआ है टू मेक सम सैंडविचेस आउट ऑफ. So let's go and see where it is. So we're about to get hunter beef sandwiches ready. Mama, uski gas nahi on. On hai? Please tell me gas hai. Yes, thank God. So we're about to get this hunter beef into action. Toast to mere yahan pe rakh diye gaye. Put. Okay, I'm going to get ready. All right. So I just put a little bit of oil into this. And I'm frying the hunter beef a little so that अच्छा सा बन जाए मज़े का. The one that's for office, ये मैंने lunch के लिए रख लिया है. This is something that I will do right now कि अभी मैं इसके ऊपर अपना ऑमलेट डाल दूँगी बना के. And then this is going to be my breakfast. So this is going to be my hunter beef omelette. This is going to be nice. This is done. फाइनली चलो, ये तो हो गया ऑफिस का. अभी यहाँ पे बन रहा है घर का. God, look at that fluffy omelette. This looks so good. मैं आपको बताती हूँ. So this is the hunter beef omelette with the toast for the नाश्ता. मम्मा ये मैंने बंद करके रख दिया है ये लंच के लिए ना. I kept it like this. What are you making? Ooh, looks nice. ये वाली बोटी आई लव द मोस्ट. नो बट अभी नहीं दी, अभी मैं बूबू से टेस्ट करा लें. इज माई नाश्ता ओवर अ ब्राउन ब्रेड, एज यू गाइज कैन सी. रियली नाइस. सो आई एम फाइनली रेडी एंड आई एम हियर. साथ साथ फॉर दैट swollen eye सिचुएशन मैंने कहा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं. सायरन आइज बना लेते हैं, सायरन आइज बना लेते हैं. सो आई डिड दिस sort of a thing today. So waiting for my appointments to come, and I also brought my selfie stick with me. Selfie stick, tripod. My tripod with me. वीर ने अभी selfie stick इसको बोला था लिफ्ट में, मैंने इसको selfie stick बना दिया. I bought my tripod with me so that I can at least film something and we have something in the vlog, ताकि आज ही vlog upload हो जाए. Because इतना लेट vlog upload करने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा होता, being very honest. This outfit is a very casual सा outfit. It's this mom jeans paired with a white t-shirt and a very casual sa hairstyle as well, because I have work to do today, so I have to look like that as well. I wanted to do makeup today, lekin not on my face because my skin is acting up like quite a lot, which makes me sad. But
I really don't want to put more product onto it. So मैंने कहा आंखों पे जितना all out जाना ना चली जाती हूँ, and lips पे भी, but not on the skin. But anyway, perfect time to get the day rolling because मैं सही time पे इधर आ गई हूँ. This gives the proper fresh vibes, ऐसे daylight चकाक करके और ऐसे जागने वाला माहौल. So that is what I wanted. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इतने सारे दिन हो गए और मेरे नेल्स बिल्कुल ऐसे फिक्के टाइप पड़े हैं, बिल्कुल ही फिक्के, लाइक देयर इज़ नो कलर टू देम. एंड नॉर्मली मैं हमेशा न्यूड नेल पॉलिशेस लगाती हूँ, यू गाइज नो दैट. इस दफ़ा मैंने कहा कि यार लेट्स डू समथिंग फंकी, लेट्स डू समथिंग लाइक समर नेल्स. जितने भी शौक किस्म के कलर्स हैं ना सारे लेके आ जाओ और उनसे ना मेरे नेल्स के ऊपर एक मज़े का नेल आर्ट बना दो. आई हैड अ रेफरेंस पिक्चर फॉर दैट. And then this nail art process started. We're done with the nails and you know me, ठीक है, मैं कभी भी इतने funky nails कराती नहीं हूँ, but आज कराया तो मुझे मज़ा आया. Plus it goes with my outfit as well because it's so white and blue कि मुझे अच्छा लग रहा है. वरना अगर if I was wearing black clothes मैं कहती please do something nude as always. By the way, check out this right here. One of my follower plus client Nirmal Ali, she sent me this painting that she made herself. रुको मैं properly दिखाती हूँ. So check this painting out. I'm sorry अभी random चीज़ें भी पड़ी हुई हैं साथ में, but how beautiful is this, guys? If you want to get any paintings made, you can definitely check her page out. It's Nirmal Ali. What? अभी बाहर एक keratin treatment चल रहा है and I'm so excited to see the result because this is actually our very first keratin client. Although our staff has done it like 1,000 times, but GBB पे ये पहला keratin client है, so I'm really excited. Let me just show you guys the before, by the way. So you saw the before and now I'm just waiting for the after. कि my god, एक तो she is so pretty first of all, ऊपर से I cannot even imagine how nice that keratin will look on her. By the way, if you're not really like catching up on all the updates, तो जाकर @glossips beauty bar को Instagram पे follow करो. You'll actually catch all of the updates that whatever we're doing over here, it's all over there. There is some keratin going on over here, as you can see. Excited for the results. This is the haircut client and this is her before. As you guys can see, she's asking for really nice heavy layers क्योंकि इनके बाल काफ़ी अच्छे और थिक हैं, सो इन पे वो बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट. इसके बाद हर कोई अपने काम पे लग गया, इंक्लूडिंग मी. मैंने भी फुल वर्क मोड ऑन किया, एप्रन वेप्रन लगाया एंड आई गॉट टू वर्क. दिस वाज एक्चुअली सो मच फन डूइंग दिस हेयर कट एंड दिस क्लाइंट हैड सच थिक हेयर और इन्होंने मुझे कहा था कि इनको बहुत मज़े के हेवी लेयर्स चाहिए, यानी कि वॉल्यूम और बॉडी चाहिए बालों में, लेकिन अपनी जो लेंथ है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही थी कि लेंथ उनकी रहे. सो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव हर वॉट शी वॉन्टेड एंड आई लव्ड द एंड रिजल्ट. लुक एट दैट प्रोसेस रनिंग, गाइज. दैट्स द केराटिन's result. My god, it looks really nice. That is the semi-end result of the keratin. However, this needs to be washed off tomorrow to be able to see the final results, but for now we have this. The blow dry is happening on the haircut client right here. Let's see how this turns out. What just came to me from my best friend. She sent me these very cute balloons. So cute. Alright, so the head hairstylist just got done with her haircut and I cannot wait to show you what it looks like. It is the signature Glossips haircut, being very honest. So अभी देखते हैं कि वो कैसा था. Keratin का रिजल्ट कितने मजे का आया, my god. And then we have 2 clients here for the Esthemax duo. By the way, I don't think मैंने vlogs में बताया Esthemax के बारे में. So अभी मेरी stressed skin पे मत जाना please. The worst time to be talking about skincare products, I feel, but anyway, you guys have seen the good days as well, so I can tell you honestly. So I have been using this Esthemax brand ka cleansing, facial, hydro jelly masks and everything, which have been working so damn well, I cannot tell you. And the best part is कि you know कि मेरी skin कितनी sensitive है, right? वो मुझसे भी ज़्यादा sensitive skin के लिए skin friendly है. Just imagine how cool is that, and it does not require any tugging on the skin, any scrubbing or anything of that sort. बिल्कुल ही एक less is more वाला facial है या cleansing है that gets the job done
एंड इट्स सो इंस्टा वर्दी एज वेल. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है दैट इट्स इंस्टा वर्दी, क्योंकि जो उसका हाइड्रो जेली मास्क है दैट इज लिटरली लाइक एन इंस्टा ट्रेंड कि आप वो जेली मास्क लगा के मजे से लेटे हुए हैं एंड इट्स डूइंग द जॉब एंड देन यूर टेकिंग सेल्फीज एंड स्टफ बिकॉज माई गॉड. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज अ मास्क फॉर एवरी स्किन प्रॉब्लम दैट यू माइट बी हैविंग. लाइक मैं अपना कौन सा मास्क बनाती हूँ, आई समटाइम्स मेक द एक्नी वन बिकॉज यू नो मेरी स्किन थोड़ी सी इरिटेट हुई हुई है, सो द कामिंग एंड सूदिंग वन. उसके अलावा द ब्राइटनिंग वन, द रिंकल फ्री वन, देयर लाइक सो मेनी एंड आई लव देम. आई एक्चुअली डू. इफ बाय सम चांस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंटाइस कर दिया है टू कम ओवर हियर एंड गेट दिस डन, क्योंकि ऑनेस्टली एस्थेमैक्स जो है वो रेगुलर यूज के लिए नहीं है, इट इज फॉर प्रोफेशनल यूज ओनली. तो सिर्फ सलोन्स ही उसका लाइसेंस ले सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं. So if you're interested in coming, if you live in Karachi, so मेरे Glossips Beauty Bar के पेज पे जाएं, वहाँ मेरी लोकेशन भी है. You can actually find that out and then you can book an appointment and come over here for these deals, क्योंकि मेरी deals जो है वो 7th को ख़त्म हो रही हैं actually. So better to get your hands on them. और मैंने इसलिए डील लगाई थी so that जो newbies हैं और जिन्होंने एस्थेमैक्स कभी ट्राई नहीं किया तो वो एक डिस्काउंटेड डील पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर लें, because once you do it you're never going back. Like I'm never going back. I'm sticking to Esthemax. So that deal was for you guys. Okay? Chalo, bas ab bahut ho gaya. Bye. Out that cut. It's framing the face perfectly and giving her the right amount of volume because she has such nice healthy hair, mashallah. Thank you. Hello. So I'm finally home now. Hi, I was waiting to do this. Oof. This is the most satisfying feeling that one can ever get, so thank God for that. Much needed. And even to take off my eyelashes because my God, I needed it so badly. Come on, come off. Some major glue, I tell you. They don't even budge. हेलो, इट्स द नेक्स्ट डे. लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से अपना नाश्ता आपको दिखाना था. सो न्यूट्री लव हैड सेंट मी लाइक दिस ह्यूज PR पैकेज, दिस ह्यूज ऑफ अ PR पैकेज, ठीक है. और इसके अंदर इनके बहुत सारे ये ग्रेनोला बार्स आए थे और बहुत सारी चीज़ें आई थी, बट ग्रेनोला बार्स से ज़्यादा यमी जो चीज़ आई थी ना वो आए थे इनके ये क्रंची सीरियल्स. So this is the Berry Blast one and this is just like the best thing for me to take to the office. ये कोई sponsored चीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने मुझे PR पैकेज भेजा and I just really loved this cereal, so I'm sharing that with you guys कि मैं आजकल ये खाना शुरू हो गई हूँ. एक और फ्लेवर भी था लेकिन मैंने इसको ट्राई आउट नहीं किया था. दिस इज़ कोकोनट आमंड. मुझे नहीं पता ये मेरे टेस्ट का होता है कि नहीं होता. Berry Blast is definitely my taste, so I was more than excited to try it out. So normally लोग इसको दही के साथ खाते हैं. I really like to have it with milk because I'm not a dahi person. I've never been. So look at this. इतने मज़े मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर. वैसे this is like the perfect नाश्ता for me. Love it. अभी जब नाश्ता किया तब जाके आई फील बेटर, वरना अभी तक तो आई वॉज फीलिंग सो डाउन मैन. देर से उठने के बाद दादी जान को कह रही थी कि आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क टुडे. मेरा दिल नहीं कर रहा, माई बॉडी इज एकिंग. शी इज़ लाइक कुछ खाओ, यूल फील बेटर इंस्टेंटली. सो अभी खाया, सो आई फील अ लॉट बेटर. नाउ आई एम प्रोबेबली गोइंग टू गेट रेडी एंड आई एम गोइंग टू गो. लेकिन आज का मेरा प्लान ये था कि मुझे ग्रोसरीज करनी जाना है इम्तियाज़ से एंड आई हैव टू बाय लाइक अ लॉट ऑफ हेल्दी स्टफ़, क्योंकि अब सीन ये है कि मुझसे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का खाना जो है ना हैंडल नहीं हो पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा. कि डब्बा कहीं पे आता है, फिर फ्रिज वहाँ पे होना ज़रूरी है क्योंकि किसी टाइम पे आप खा पाते हो, किसी टाइम पे आप नहीं खा पाते तो फ्रिज में रखा जाएगा. उसके अलावा ये कि अगर आप नहीं खा पाए तो वो खाना लिटरली वहाँ फिट भी नहीं आ रहा होगा, आपको खाना भी ज़रूरी है. लाइक देयर इज़ जस्ट अ लॉट टू इट राइट नाउ जो मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा. सो आई थॉट कि सबसे अच्छी जो चीज़ है ना अभी जो मैं कर सकती हूँ वो ये है, जो मैनेजेबल भी है, वो ये है कि मैं अपना ख़ुद का खाना लेके आऊँ एंड अपना ख़ुद का खाना बनाऊँ. रोज़ सुबह उठ के या रात को बना के सो जाऊँ
और एयर फ्रायर में डाल दूँ, साथ में ले जाऊँ कबाब और बॉइल्ड अंडे और इस टाइप की चीज़ें या टिक्के. दैट्स लाइक ईजियर एट दिस पॉइंट because I need to switch to a healthier lifestyle. I've recently gained a lot of weight because of stress, not because of unhealthy habits, more because of stress. My skin has been acting up because of stress, which is not really okay. So time to change that very desperately. कल मैं इस चीज़ को लेके एकदम से बहुत परेशान हो गई थी. Not the weight part, वो लाइफ का अपना मामला चलता रहता है. The stress part कि यार बस कर दो. You're just like 26 years old and you cannot be doing this to yourself at this point. मतलब क्या बुढ़ी हो, चिल करो यार. तो बस अब थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है मैन. It's very important. And यहाँ पर दादी जान is sitting and enjoying her नाश्ता, looking like a cutie in her new night suit. She looks the best in these खिले हुए colors, just by the way. She looks really cute. लोग है ना, हम मतलब मैं, आयशा और हम सब खेल रहे थे. फहद भी था, राशिद भी था, हम सब थे. तो हमने कहा कि यू हैव टू टेल बाय द पर्सन्स अपीयरेंस, जैसा वो दिखता है बस उससे कि वो आपको क्या लगता है कि वो कैसा बंदा होगा. तो हमने सबके दिए ना कि जैसे ओ ये ऐसा लगता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, यू नो. नहीं ऐसी बात नहीं है. आई एम सॉरी, मैं हर वक्त भंगी लग रही होती हूँ. आई एम नॉट अ भंगी. नहीं तो आयशा ने मुझे एकदम से कहा ना, आयशा ने मुझे जब जज किया ना फ्रॉम माई कवर, शी सेड आप ही आपके दो फेजेस हैं. एक आपका फेज है जिसमें आप नाइट सूट में होती हो. आपके नाइट सूट्स मेरे नाइट सूट से भी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि बस मैं इनको पोछा बना दूं. और आप ऐसे बगैर मेकअप के बैठी हुई होती हो, अपना गोल सा मुंह लेके कमरे में और अपना काम कर रही होती हो. कहती है दैट फातिमा इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, बेचारी सी. फिर कहती है फिर मैं आपके सैलून आती हूँ तो वहां पर बैठी होती है ग्लॉसिप्स, जो लगता है कि सुबह उठ के 2 घंटे लगा के इसने अपने आप को तैयार किया है. शी इज ऑल एक्टिव और वो बैठना नहीं चाहती और वो काम कर रही होती है. मैंने कहा यार मतलब दिस इज अ बिट वो के ओके बट थैंक्स. आयशा को लेकिन सबने ये कहा कि यू लुक लाइक अ वेरी, यू डोंट लुक लाइक अ स्मार्ट गर्ल, यू लुक लाइक अ गर्ल हु इज वेरी प्रिटी. वो होता है ना ब्यूटी विद नो ब्रेन्स वाली. फिर सबको ये लगता है कि तुम ब्यूटी विद नो ब्रेन्स हो, लेकिन जब तुमसे बात करें एक दफा तो रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड लाइक दैट इज टू मच ब्रेन. सो इस टाइप का सीन है. 70 और मैं कितने इयर्स ओल्ड? मम्मा आपने क्या लिखा? 17. जान just labeled Aisha 70 years old and she labeled me 17 years old. इतनी कोई मरियल वाइब्स आ रही है मुझे कि मैं वापस से जाके लेट गई हूँ. लाइक व्हाट इज दिस मुर्दारपन, गेट आउट ऑफ इट फातिमा. लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे आ रही है फुल मुर्दार वाइब. मैं क्या करूँ? आई हैव टू गेट रेडी एंड आई हैव टू गो. आई हैव टू, बट हो नहीं पा रहा मुझसे. बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही है भाई. आई डोंट, ओह नाउ आई गेट इट व्हाई दिस इज हैपनिंग. I get it. Hello. I somehow managed to get ready. Somehow. I don't know how, but हो. मैंने अभी अपनी स्किन के ऊपर ना ये सनस्क्रीन लगाया है. Let me show it to you guys. This is the Hira Ali Beauty Sun of a Beach. And जब मैंने इसको first impressions में लगाया था ना अपने हाथ पे, तो it was like a little too glowy. मुझे ऐसा लगा था कि जैसे चेहरे पे it might look like oil. लेकिन अभी जब लगाया है, it actually looks really nice. I'm liking it. सेहत के साथ साथ एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी, दैट वाज माय आई हेल्थ. आई एम सपोज टू बी वेयरिंग दीज ग्लासेस लाइक 5 to 6 hours एवरी डे. मैं रात में आके पहन तो लेती हूँ, बट ओनली व्हेन आई एम अबाउट टू प्ले लूडो स्टार. उस वक्त याद आता है कि ओह आई एम सपोज टू बी डूइंग दिस. बट एनीवे, at least I got these on today. So guess what? I'm finally here, back again. And our keratin client is also here right now, who's here for her final wash. And then I'm going to show you like the full-on shiny wale keratin wale baal, which I'm excited for. I kept telling her that, and I'm really excited. मैं ऑफिस के अंदर आई हूँ, and you know what? There's this thing that's going around in my head. वो ये है कि इतना टाइम हो चुका है और मुझे मौका नहीं मिला to just properly decorate my office, क्योंकि मेरा रोज़ दिल कर रहा होता है कोई ना कोई वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही होती बिकॉज कहीं पे ये चीज़ें पड़ी हैं, कहीं पे वो चीज़ें पड़ी हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है. यहाँ पर ये सिचुएशन है ऑफिस की. सो लाइक एवरीथिंग इज प्रीटी अनटाइडी राइट नाउ, जो मुझे सही करना है.
लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कब वो मौका मिलेगा जब रैंडमली मैं सारी चीज़ें इधर लेकर आऊँगी और सब सही कर दूँगी। क्योंकि आज जाके तो पानी थोड़ा बहुत सूखा है नीचे से कि एटलीस्ट मैं गाड़ी से निकल के पैदल चल के, मतलब बोरियों और पत्थरों पे और पट्टों पे नहीं, फट्टों पे नहीं मैं रोड पे चल के अपने ऑफिस आई हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट डे। वो भी क्योंकि ताज भाई ने थोड़ी सी टेक्निकल पार्किंग का तरीका निकाला था, वरना फिर मैं कीचड़ से आती और फिर मैं इधर आके सबसे पहले अपने पाँव धो रही होती। लेकिन हाँ, सो इस सिचुएशन में अब क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से कंटेंट आ रहा है ना, मुझे इतनी ज़ोर से इतने मज़े मज़े की आउटफिट वीडियोस बनानी है, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस बनानी है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। So I also did some makeuping on Mikhail right here and she looks so pretty. Say hi. तुम्हें अच्छा लगा मेकअप? अच्छा लगा ना? यहाँ पे बैठी हुई है, हंस रही हैं। बाजी को तो फुल मस्ती चढ़ी हुई होती है मुझे देख के। अभी मैं उनकी शक्ल दिखाऊं ना, एक सेकंड, अभी दिखाती है, देखो अभी भी शी इज लाफिंग, शी इज लाइक ओ माय गॉड। सो द होल डे हैज लिटरली गॉन बाय। बहुत सारी चीजें की, मेकअप भी किया, बहुत सारा फन स्टफ किया एक्चुअली, बट नाउ इट्स लाइक द टाइम दैट एवरीवन हैज टू गो होम एंड सो हैव आई। एंड आई थिंक इस व्लॉग के लिए काफ़ी सारा फुटेज अब जमा हो चुका है, सो आई कैन फाइनली अपलोड इट। फाइनली मैंने व्लॉग किया था सिर्फ इसलिए सो दैट आई हैव कंटेंट और फुटेज टू जस्ट अपलोड। सो आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वन। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.